us are teachers and colleagues here, and we welcome you here. If you agree, shall we start the program? Can you hear us? Please can we start. start Please start. Yes, please start. Okay. So, Amitabh and Mary, please let's start the program. Good morning, respectable members of the management, eminent guest for today, Dr. Harish Shetty, our very own principal madam, guests and invitees on various platforms, parents, and our dear students. My colleague, Amitabh Seth, sir, and me, Mary John, welcome you to the 7th session of Project Hope, titled Overcoming Losses. You are braver than you believe, stronger than you seem, smarter than you think, and loved more than you will ever know. This, in a nutshell, is the essence and message of Project Hope. That we reach out to build confidence, hope, purpose, positivity, and support in these unprecedented times. We begin today's session with a child's prayer. I quote, "Dear God, you are ever present, our help when we are in trouble. You calm the anxious fears of those who turn to you. Give strength and healing to those who are sick. Give courage and skill to those who care for them. Grant wisdom and clarity to world leaders and those working towards a cure, and humble all of us in our daily living to help humanity." For the ball to get rolling, an idea needs to be conceived. Madam Principal, Dr. Deepa Sharma, had a light bulb moment, and that moment, that extraordinary thought, when it was shared with the management and the staff of our college, it set a train of thought, action, implementation, service, and immense joy experienced through teamwork. In fact, some of us had never interacted or had the opportunity to work with each other, but the project Hope has bridged all the gaps. I can proudly say that if one wishes to see teamwork in action, this is it. With delight, I invite Madam Principal to address us. Good morning, Amitabh. Thank you. And good morning, Mohan Bhai. Good morning, Dr. Shetty. Good morning, all our people who are here, plus thousands of people, students, and our guests who are watching us on YouTube, our own students, my colleagues here. I welcome you to this program. Mission Hope has been a very, very learning journey for all of us. We started this program this year, but I'm very proud to say that we the thought, the seeds are there in our management, in our culture, in our college, always there. Last year when Corona just started, our management declared that they will give 25% concession in fees from
all across the college. So right from 11th to the postgraduate, they gave 25% concession in fees. Even this year, they are continuing with that 25% concession. They are incurring huge losses in terms of money, but I'm confident, and I'm sure that they are really gaining huge gains in terms of well wishes, in terms of helping the girls to study further. So thanking them, I'll talk about Mission Hope. Mission Hope is a program where we thought that we will start inviting doctors, psychiatrists. So we will address the physical health issues and the mental health issues, emotional health issues, and wherein we have had many speakers who have talked about the how to safeguard oneself from corona, and if suppose corona happens, then what to do. So what is the difference between isolation and quarantine, and what medicine, and even what kind of vaccination, what are the different kind of vaccination. It has been a very, very learning journey for all of us. And we have 4 helpline numbers where our teachers, our staff are taking the calls, and they are helping the students, either guiding them to go to the doctors. Our own Dr. Ranjan Manyar helped them. She doesn't take a single paisa, and she guides them what medicines they should take and what tests they should get done. And of course, helpline numbers are also given to given for the facility of Annadan. So our college teachers have collected, teachers, non-teaching staff, peons, all of us have collected some corpus, and from that corpus we are giving free of cost a kit which has atta, dal, and daily essentials to students. And when you do a good work, so many people just join in. There is one staff, Dr. Mukhne, she said that, okay, I will give vitamin C free of cost. So she has been given with the kits. We are also giving vitamin C to the strips to the students. We also have yoga classes and pranayam classes in the morning. Students are attending them. Our teacher is taking those classes every day. Now, this shows the commitment levels. It's not easy to get up every day without fail, even on Sundays, and take classes, and students are also attending. So that is the kind of commitment, that is the kind of camaraderie that our Mission Hope has generated. And we are learning ourselves that, okay, we are all capable of doing that. So we also give medicines free of cost to students who can't afford it. So this has been our journey, and we have had many people like Dr. Shetty. Dr. Shetty himself is actually a very, very big person, and we all are aware that he has been one of the people who have focused on mental health. So अच्छा थोड़ा ही बोलती हूँ, he's इशारे से बता रहे हैं कि थोड़ा ही बोलिए. No, I'm saying I'm a small person, not a big person. I'm a person. Yes. So that is for others to say, and I'm sure when we listen to you, we all will know what is the depth of your thinking. I know that he has formed groups. There is a group of principals he's formed where he talks about mental health, and he writes very good articles. Typically in the month of March, April, every year he will write about suicide, and what parents should do, what students should do. And he speaks the lingo of the youth, so he connects with the youth very well. So having said that, I also just heard it somewhere 2 days back, and I felt so apt it is. एक ना एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए, एक ना एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए. So let's continue with our call. Thank you. Yeah. Thank you, madam. Taking this thought further, we now request our colleague to share a synoptic video of Mission Hope. Over to you, Dr. Preeti, madam.
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, Thank you so much, Dr. Preeti Madam. If we have the commitment, he is our driving force. If we are the inspiration, he is the motivation. And if we are thankful, it is because he stands for humility. Yes, we are speaking of the beacon light of Jan Seva Samiti, Dr. Mohanbhai Patel, sir. His presence in every session of Mission Hope speaks volumes about his commitment towards social wellness. It is my honor to invite you, sir, to share your thoughts. Thank you, madam. Thank you. Our very welcome guest today, the great speaker for the day today, Dr. Hari Shetty, our main principal, Deepa Sharma, my colleagues in the management, खास करके रंजन बेन मिश्र, रंजन बेन मणिया तो है ही वेरी एक्टिव एंड कंट्रीब्यूटिंग, पूरा देखो ने प्रोग्राम है कितने अपने सर पे जिम्मेदारियां ली है उसने, एंड शी इज द वन, थैंक्स टू हर all this excellent program is being carried out today. Excellent people coming here speaking to us on subjects, very useful subjects, and knowledgeable persons, experienced people coming to us. बाकी जो है ऑडियंस में मेरे colleagues in the
मैनेजमेंट मोहनलाल शाह को तो मैंने देखा, और दूसरा विपिन भाई को भी देखा, दूसरे रंजन में तो है ही हमारी मैनेजमेंट में, स्टूडेंट्स, मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी एंड ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस प्रोग्राम. इट्स अ फेस्टिवल दैट इज गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू मी. कोरोना की बात तो है, दुख की बात है, प्रॉब्लम है, डिफिकल्टीज है, एवरीथिंग, बट सो फार एज आवर कॉलेज इज कंसर्न, इट्स ए फेस्टिवल ऑफ नॉलेज, फेस्टिवल ऑफ गाइडेंस. अच्छे अच्छे डॉक्टर आते हैं, अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट, पीपल of great eminence in their profession. They are coming to us, they are being invited, and we have the advantage and the pleasure of not only welcoming them, but listening to them, listening their words of advice, listening to their words of guidance, and all that. So we are benefiting a great deal thanks to Corona. कोरोना की मैंने अभी ही बात की ना, कोरोना ने नुकसान तो बहुत किया है, पर थोड़ी साइड इफेक्ट्स है वो पॉजिटिव भी है. तो एक दफे let us have, when we say goodbye to Corona, let us also include in that thank you Corona. For Corona, you have taught us quite a lot. You have been useful to us. You have guided us in many ways how to lead our life in future. We know Dr. Harish Shetty is one such great person of eminence who is here with us to talk to us. He is a man of psychiatry. We know psychology and psychiatry, there are differences, basically the same. But nevertheless, one is a specialist in one aspect practice. In the same branch, we have this psychiatrist also. Training people, go through live studies of mind and all that. We have a lot to learn from both psychology, psychiatrists, we have to learn, and students, teachers, not only you learn, but we as management also learn a lot. I think we are students. We are your fellow students right now in this kind of program that is going on. We learned a lot of them. Dr. Shetty, for instance, he is here. He is going to speak to us on the strength of our mind. We have learned a lot, we have heard a lot about the strength of our limbs. Limbs की बातें की है, फेफड़ा की बात की. We have talked about the hands, the brain, all that we have been talking about. But now our mind, and that is very important. It is the mind which controls our limbs. हाथ की बात करें, पेट की, फेफड़ा की बात करें, कुछ भी कर, lungs की, but it's the mind which controls all our limbs. And therefore, a person like Dr. Shetty, who is to give us the advice and guidance, I think it's most welcome that we want to hear from him. गीता जी में कहा, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः. मन, your mind is the cause. Your mind decides whether you are strong or weak. Your mind decides whether you are free, independent, or enslaved. Mind decides whether you are happy or miserable. Mind decides whether you are healthy or sick. All that, it depends on what the mind decides. And therefore, once again, I repeat, Manah eva manushyanam karanam bandha mokshayoh. And therefore, it's the people like Dr. Shetty who can tell us and give advice on the subject of psychology and psychiatry. Corona has brought certain kind of situations in our country, in our lives. We have to face them both physically and psychologically. It has created problems, many problems. Your ability to face those problems, to get over those problems, to win over the problems that have been created depends entirely on how strong your mind is, on what your mind decides, and how and where it leads. It is leading you to. Corona, apart from being an onslaught on our physical well-being, it also brings in mental illness among many. And when it comes to seeking help for mental illnesses, the kind of mental problems that we have faced, two subjects.
come to our mind straight away: psychology and psychiatry. And we have a practicing psychiatrist today with us to advise us and to guide. The psychiatrists, they are trained, highly experienced. They know the subject very well. And if we are seeking some guidance in the field of mental illnesses, and many suffer from that, whom do we approach? Then we approach people like Dr. Shetty to seek his guidance, to seek treatment from him, and to get over the problems. It's a subject of mental health, but their approach is always different, whether psychologist or a psychiatrist. A psychiatrist is known to move with the flow of human life and the changing circumstances and environments. Psychiatrists are usually employed at major hospitals, rehabilitation centers, medical universities, nursing homes, and they are sometimes even in private practice. They recommend different types of therapy and exercises. They carefully observe the patients and counsel as to how to get over the problem that they are suffering from. We have in our country a huge problem of mental health, otherwise also. We know, but also at the same time, we know that our country is mentally, psychologically, and equipment-wise prepared to meet these kind of challenges. Highly dangerous pandemic that we have to face today also calls for all resources to be brought together so that we can get over the problem. We are also fortunate at the same time that we have in our country men of great eminence, men of great knowledge, experience, who can guide us and give us the advice and how to deal with the crisis that we are facing. A planned awareness is of utmost importance if we are to control the damage that is being caused to us by the pandemic. The knowledge being imparted to us through this program will in fact go much beyond the present situation. We get over the corona pandemic, but the knowledge that we acquire, what we learn, is going to be very useful throughout our lives and to the society at large. Corona is being tackled well in spite of the difficulties and obstacles on the path. And I'm confident that soon we shall win the battle against COVID-19. The knowledge and guidance that we receive through this project will go much beyond, as I said. In the long run, it will help us tackling psychological and mental problems, which are many times a result of different other kind of ailments. And we all humans have to face. So I congratulate once again our college, then principal, Deepa Sharma, our colleagues, and all those who are connected with this framing and creating and framing and making up of this project and executing it so very well. To help us and to learn, as I said, more about the subject, we have Dr. Shetty today. His advice and guidance is going to be of great help to us, not only in facing the present situation, as I said, but also it's going to be a lifetime gain and benefit. मन की मजबूती यही तो है जिसकी बुनियाद पर हम ऐसे प्रॉब्लम और ऐसी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं. ये तो जीवन है. This is what it like. Problems come, difficulties come, obstacles come. How to learn, how to get over them. That is the point. That is life. And ये कहते हैं, कभी-कभी मैं कहता हूँ, मंजीले राह पर अगर खाई हैं ठोकरें मैंने किसी पत्थर से कभी. मंजीले राह पर अगर खाई हैं ठोकरें मैंने किसी पत्थर से कभी, तो मंजिल का निशान भी मैंने उसी पत्थर से लिया है. Those very problems, they lead us to our ultimate target. ऊंच नीच, ऊंचा जाना, नीचे जाना, गरीब होना, पैसे वाले होना, हेल्दी होना, बीमार होना, ये सब आंधियां आनी, आंधियां जानी, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है. Question is how to get over them.
and how to get over them ultimately to reach our goal, that is to be happy in life. समृद्ध होना, knowledgeable होना, संसार एक अच्छे नागरिक बनना in the society, ये जो हमारी खेवना है, जो हमारी मुश्किलें जो आती है, उसमें से सीखना है, and ultimately how to reach the ultimate target of happiness. तो मैं आपको इतना ही कहता हूँ, मैंने खास करके स्टूडेंट्स याद रखो, जो जो पढ़ती हो शायद नोट भी करती हो तो नोट भी करो, ये करो, what you share all the knowledge that you have with your neighbors, with your family, and to the members of the society at large, so that it's not only 1,000 or 2,000 of you who are listening to these lectures, but let the message go much wider in the society. This is a program of national usefulness. तो ये है एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा है ये कार्यक्रम से, ये प्रोजेक्ट से बने। मेरी एक कबूल करता हूँ, मैं लास्ट टाइम भी बोला था आपको, मेरे को एक दुख होता है, दर्द होता है दिल में कि आपका दर्शन मैं कॉलेज में आकर नहीं कर सकता हूँ। आपको देखता हूँ, लड़कियों को मैं देखता हूँ खेलती कूदती हंसती नाचती वगैरह, पढ़ती तो है ये जरूर, बट ये भी एक सुंदर दृश्य मेरे लिए होता है, लड़कियों को हंसती कूदती देखती खेलती देखता हुआ, वो नहीं देख सकता हूँ। Let us only hope that we get over the present problem, the pandemic, जितना बन सके उतना जल्दी कॉलेज खुल जाए, आप आती रहो, तो आपका आना शुरू हो जाए, मैं भी विजिट करूं, आपके दर्शन करूं, आपके साथ थोड़ी मजा भी करूं, तो ये आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। जल्दी आएगा इतना ऐसा दिन, आई एम श्योर, बट इन द मीनवाइल नाउ वी गेट ऑन विद दिस प्रोग्राम ऑफ लर्निंग ऑन हाउ टू लीड अवर लाइफ इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। वी हैव डॉक्टर हरीश शेट्टी, और प्रोग्राम को तो आपने बोला है, नाम दिया है क्या, स्मार्टोथॉन। अच्छा, तो लड़कियां दौड़ो, ये शेट्टी साहब आए हैं, उनसे सीखो, ये करो, कुछ गेन समथिंग, और पीछे दौड़ो, जीत नहीं बनती है, रन दौड़ती रहो, स्मार्टोथॉन है, दौड़ो। ओके, सो सर शेट्टी साहब, आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम यू हियर in our Jana Seva Samiti's college, and now we are waiting anxiously to listen to you. Right? Thank you. Thank you, sir. Thank you. I would like to remind our students to listen to our invited speaker for today very attentively and be ready with their questions. Dr. Harish Shetty is a practicing psychiatrist with a postgraduate degree in psychological medicine and a postgraduate diploma in comparative psychomethodology from University of Mumbai. Dr. Harish Shetty has immense experience in school mental health and has conducted hundreds of workshops for students, teachers, heads of educational institutions, and the non-teaching staff for more than 2 decades. He is in an educational institution every week. He has aided in championing the rights of the children across all his life. His petition with the Maharashtra Human Rights Commission to abolish the segregation practice in schools, that is separating children by virtue of marks and dumping those who score less in a separate division in schools, was accepted and the segregation was abolished. His latest petition in 2015 in the Bombay High Court on learning disabilities has facilitated the starting of learning disability detection centers in every district of Maharashtra. Dr. Shetty has immense experience in the field of disaster and mental health and has worked with the victims of Marathwada earthquake, Kandla cyclone, and the riot affected in Gujarat. He also has been assisting victims of piracy involving Somalian pirates. He has extensively counseled the victims and their family members. He has evaluated the rehabilitative processes following the Jabalpur earthquake and the Gujarat earthquake for a human rights group. Dr. Harish Shetty has a relationship with SNDT Women's University as well and had evolved and conducted a refresher course for school counselors with SNDT as a partner between 2000 and 2005. As a trainer and a researcher, he has conducted hundreds of training sessions for different professionals in the country, including the medical profession. He has also been conducting workshops with the youth
on suicide prevention and trains the lay people to be mental health soldiers. Dr. Shetty has been appointed as a member of NTA, National Testing Agency, by the Union Cabinet on behalf of the HRD Ministry. He is a trainer, researcher, and an avid blogger. So, I invite you to address our audience. Namaskar. Namaskar, everybody. Thank you, Deepa ji, for inviting me. Deepa ji is an old friend. I have been to your college live so many times. Mohanbhai, તમારું બધું જે પ્રવચન હતું બહુ ઇન્સ્પાયરિંગ હતું. બહુ ઇન્સ્પાયરિંગ મોહનભાઈ. અને આટલું સરસ ગુજરાતી બોલો છો, આટલું સરસ ગુજરાતી બોલો છો. અરે વાહ 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 વાહ. ઉપાય જ નથી ને અહીંયા. ઉપાય જ નથી. And Amitabh is a very old friend, very dear friend for a very long time. We have grown together and in our profession and so lovely. My dear students and teachers, लगी पड़ी है ना, सबकी लगी पड़ी. और बाय द वे, आपका घर जैसा मेरा घर है. अभी आपको बहुत सारा गैस की आवाज सुनेगी. हमारी चावल अभी हो रहा है. 3-4 सीटी भी सुनने में आएगी. मेरी माँ की बीच में डांट भी सुनने में आएगी. तो ये पार्ट ये बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा. जैसे आपका घर वैसा मेरा घर. अभी क्या है, घर पे बैठे बैठे टीचर लोग इतना ही दिखते हैं. जो 3 डायमेंशनल लाइव टीचर थे वो इतना दिखते हैं. अपना वीडियो चालू भी नहीं कर सकते क्योंकि वाईफाई खराब है. कुछ लोगों के पास एक फोन से 2-3 बच्चे शिकते हैं. आणि अशी अवस्थेत अजीब बात म्हणजे त्रासदायक अवस्था है ही मी मानतो. And in this state it's difficult, accepted. पर कमल कीचड़ में ही उगती है, ये याद रखना. कीचड़ में कमल उगती है. और ये उम्र ऐसा है कि लात मारो तो गंगा आना चाहिए. ये उम्र ऐसी है जहां 19 साल का योगेंद्र यादव कारगिल युद्ध हमारे लिए जीता. कारगिल युद्ध में इनका नाम जरा टाइप कीजिए. टाइगर हिल को जो जीतने वाला, परमवीर चक्र, when alive, only time was given to this 19-year-old Yogendra Yadav. Kargil was not won by generals, it was won by young soldiers who have never fought a war. Corona is not won by doctors like me, but young doctors at the age of 20, 24, 25, 26. India is on the threshold of a great tomorrow and you are the architects. पर क्या है इतना ही, मैं तो बिंदास कहता हूं. आप तो कहेंगे यार तुम्हारा तो सब कुछ हो गया है, तुम तो बोलते रहोगे, पर हमारा क्या लगता है पता है भाई, खराब अवस्था. कुछ लोगों के घरों में कोरोना हुआ होगा, कुछ लोगों के घरों में किसी की मृत्यु हुई होगी, अपने फ्रेंड्स के घरों में भी ऐसा कुछ हुआ होगा, नौकरी गई होगी, बहुत सारा चीज हुआ होगा. और मैं सचमुच कॉलेज को दाद देता हूं कि आपने मिशन होप शुरू किया है और बहुत लोगों को मानसिक, शारीरिक और मटेरियल सपोर्ट भी दिया. ये बहुत आवश्यक है. सिर्फ मुंह से कहना नहीं, करना बहुत जरूरी है. और मैं मोहन भाई जी और हमारे प्रिंसिपल और सभी फैकल्टी को हृदयपूर्वक धन्यवाद कहता हूं. मग काय एवढे इल्लूशी टीचर आणि ती बोलत असते आणि आपल्या घरी सगळं चालू आहे, ओरडणं, स्वयंपाक, आणि अशी अवस्थेत कसं काय अभ्यास करायचं. टीचरांना मला सांगायचं है, वय टीचर को अपॉर्चुनिटी मिला है कोरोना में, इनोवेट और पेरिश. यानी क्लास के अंदर बुक शुड डांस इन द क्लास, द पेज शुड डांस ऑन द बुक एंड द वर्ड शुड डांस ऑन द पेज. जलवा दिखाओ, नहीं तो हलवा तो खिलाओ, नहीं तो हवा तो आने दो. वो सिखाने की पद्धत बदलना चाहिए. नहीं, मैं जब जैसा सिखाता हूं मैं बदलता नहीं. मुझे याद है एक मेरे खुद के शिक्षक MBBS के 25 साल के बाद मिले और बोले, हरीश मेरा एक कॉमा भी चेंज नहीं हुआ, मेरा एक लाइन भी वही लाइन है 25 साल से. मैंने कहा अंदर से बाहर से नहीं यार, तू तो बदला ही नहीं. अरे शिक्षक नहीं बदलेगा तो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे. उनका जो पूरा ग्लो है वो बंद हो जाएगा. म्हणजे त्याचा चेहऱ्यामध्ये जे आहे ना शाइनिंग जाणार. टीचर लोग पगार से अपना चेहरा को शाइन नहीं करते, सिखाने के पद्धति से.
The teacher is the dancer and the DJ in the class. No principal can disturb her there. And ये कर्म भूमि में यदि आप ग्लो नहीं हो जाएंगे तो फिर आपकी जिंदगी छोटी हो जाएगी। तो मैं ये कहता हूं, गिटार लेकर आओ, गाने सुनाओ सब्जेक्ट के साथ, चुटकुले सुनाओ और इंटरैक्टिव क्लास करो। ऐसा सिखाओ कि आप एक स्टोरी टेलर है। टीचर इज अ स्टोरी टेलर। मैथ्स को भी स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स को भी। मैं ये खास करके क्यों कहता हूं, क्योंकि मैथ्स के टीचर मुझे बोल रहे हैं हम मैथ्स सिखाते हैं, हमको स्टोरी वोरी कुछ नहीं, हमसे इक्वेशन। अरे यार, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है इस पृथ्वी पर जो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते कहानी के रूप में। इकोनॉमिक्स वाले बोलते हैं हम हमारे इकोनॉमिक्स है, हम लोग सब वो कौन है, वो हमारे बंगाल के वो नोबेल प्राइज, उसके सब हम चले हैं। अरे इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, मराठी हो, हिंदी हो, साइकोलॉजी हो, आप कहानी के रूप में सिखाना ही चाहिए, नहीं तो नहीं कहूंगा। पर ऐसे करते करते आपको लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है। मुझे भी, हाँ मानता हूं, मैं शिक्षकों को मानता हूं कि घर में ऑफिस भी चालू है, स्कूल भी चालू है, कॉलेज भी चालू है, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे कंधे पर आके कभी कभी हैरान करते हैं तुमको। बहुत डिफिकल्ट है टीचरों को भी। सो एवरी स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड इट्स सो डिफिकल्ट फॉर अ टीचर। बी कंपैशनेट टू योर टीचर्स, बी कंपैशनेट टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कोरोना में बहाना भी मिला है, ऑनलाइन एग्जाम चालू है। ऑनलाइन टेस्ट में पता है ना क्या होता है, गांधी जी की वाट लगाते हैं। गांधी जी को कहा था एक बार केटल का जो है ना स्पेलिंग रॉन्ग है, तो चेंज नहीं किया उन्होंने, और ऑनलाइन में। पर एक बात ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई और पहलवानी का उम्र निकल गई तो गई। इफ यू लूज दिस इयर्स ऑफ एजुकेशन, your condition will be as bad or as good as your mother. You will not go above that developmental level. कहने का तात्पर्य ऐसा आहे, ह्या अवस्थेत अभ्यास करायचं म्हणजे तुम्हाला काय सांगायचं आहे? तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई छीन सकते हैं, तुम्हारे माता पिता को कोई छीन सकते हैं, तुम्हारे पास पैसा ये भी छीन सकते हैं, तुम्हारा घर बंगला ये भी छीन सकते हैं, पर तुम्हारा नॉलेज किसी के बाप भी छीन नहीं सकता है, तुम्हारी हिम्मत किसी के बाप भी छीन नहीं सकता है। याद रखना, nobody can steal your knowledge or your courage, and these are the two things which keeps human race going. पर मैं आप कहेंगे आप बड़ी बड़ी बातें कर, तुम्हारा तो सब हो गया। मानता हूं यार, अंदर से बड़ा तकलीफ होता है। नौकरी गई तो डर लगता है, माँ कहती है कुछ काम कर यार, कुछ पैसे लेकर आ। कोरोना आया तो भी डर लगता है, कॉलेज के लिए फीस ने तो शर्म आती है। मेरी अवस्था पर मुझे कभी कभी गुस्सा आता है। आसपास में लोग गए होंगे ऊपर, मुक्त हुए होंगे, ये सोचकर भी दुख लगता है, और आगे की जिंदगी मेरी रुक सकती है, इस पर भी बहुत दुख लगता है। और याद रखना, दुख के साथी तुम्हारे चार है, चार कम से कम 4-5 तो है ही। दुख के साथी आपके दोस्त है। खुल के बताओ कि मुझे रोना आता है, खुल के बताओ कि मेरी फटी पड़ी है। अब आप कहेंगे इतना बड़ा डॉक्टर ऐसी भाषा क्या वापरता है? मुझे मेरे हिंदुस्तानी भाषा पर कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं है शर्म मुझे। और ये सब भावनाओं जो है ना, ये अपने अपने भेजे के ऊपर एक छोटा सा फिल्म बनाता है, जिससे जो पढ़ाई आप सुनते हो अंदर ही नहीं जाता है। तो जब तक आप इस फिल्म को क्लियर नहीं करेंगे या इसका इम्पैक्ट आपके 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 भेजे पर कम नहीं करेंगे, तब तक पढ़ाई नहीं होगी। तो याद रखना, नौकरी गई है तो पापा को कहना हम लोग सब साथ में मिलके कुछ ना कुछ करेंगे। डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि पापा मम्मी को हिम्मत देने वाले आप लोग हैं। 18 साल के बच्चों में 50 साल के वृद्ध से ज्यादा हिम्मत होती है। 50 साल वालों में ज्यादा विजडम होती है, दे आर मोर विजडम, बट मोर करेज इज अमॉन्ग द यूथ। म्हणजे काय, अहो तो त्रिशूल पिक्चर में अमिताभ कहता है मैं मेरे जेब में फूटी कौड़ी ने फिर भी जमीन का सौदा करने मैं आया हूं। कहां से आता है ये? अंदर का कॉन्फिडेंस। सो कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो हम जब माँ बाप कहते कोई चिंता नहीं सब ठीक हो जाएगा, उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। ये मत सोचना कि अंदर से होना चाहिए,
इस जिससे बाहर आत्मविश्वास सामने दिखे, नहीं कभी कभी बाहर से भी अंदर जाता है। जैसे अरेंज मैरिज जो है अंदर से नहीं आता है, बाहर से आता है। शादी होने के बाद आई लव यू कहते, अभिनय करते करते प्यार हो जाता है। सो इट्स नॉट ओनली फ्रॉम द सोल टू द स्किन, इट्स फ्रॉम द स्किन टू द सोल ऑल्सो। सो व्हेन यू टेल योर पेरेंट्स लेट अस वर्क टुगेदर एंड डू समथिंग, हिम्मत माँ बाप को भी आती है। जब आपके चेहरे में उज्जवल प्रकाश दिखता है, तो ये उज्जवल प्रकाश कहां से आता है? बोलने से भी आता है कभी कभी। Without any base, when you say nothing will happen, things start moving inside your mind. So there are difficulties. So कभी कभी दुख लगता है, डर लगता है, शर्म भी आती है लोगों को कहना कि मेरे घर में पैसे नहीं है, खराब भी लगता है, गुस्सा भी आती है कि इतना बड़ा कोरोना और मेरे पिताजी को बेड नहीं मिला, मेरे भाई को बेड नहीं मिला, मेरे दादाजी को ऑक्सीजन नहीं मिला, हॉस्पिटल का भी बिल भी बहुत होगा। ये सभी बातों को रिजॉल्व करना जरूरी है। तो एक तो अपने दोस्तों से बात करना, फोन उठा के, यार ये लग गई यार, पढ़ाई तो घुसता नहीं, क्या करूं। जितना बांटोगे उतना समस्या डिवाइड हो जाती है। इट ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस एंड इट गोज अवे। म्हणजे तुम्ही आपलं मनातले जे काय आहे तुम्ही इतरांना उघडपणे जेव्हा सांगतात, आणि इतर म्हणजे कोण? तुमचे खास, जे तुमची मस्करी नाही करणारे, तेव्हा तो हळूहळू हळू कमी होऊन जातो। और ऐसे करते वक्त पढ़ाई के समय कुछ लोगों को बहुत शर्म आती है, इंग्लिश मेरा इतना अच्छा नहीं है। अरे इंग्लिश की माँ की आंख यार, आज इंग्लिश का पौवा है, कल चला जाएगा, अपनी भाषा आएगी। क्योंकि क्या है पता है, ध्यान से सुनो, ये मुहावरा मेरी मुहावरा है, मैंने किया है बहुत समय के पहले। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी, मदर टंग is a language of culture. English helps you to fly, mother tongue helps you to survive. अपनी मातृभाषा मत भूलो। ये सिंधी लोग आजकल सिर्फ हिंदी बात करते हैं, ये कच्छी लोग सिर्फ गुजराती बोलते हैं। कच्छी भी बोलो, किया है, कुरवा है, खोरो खपे तो बोलो यार, डू नॉट वरी। और यदि शिक्षक जब ये सिखाते हैं आपको पूछना है, तो ये मत ऐसे मत सोचो कि मुझे सिर्फ 45% मिला है, मेरा इतना इंटेलिजेंस नहीं है, अरे मुझे 12th में सिर्फ 50 मिला है, मेरा घर छोटा है, मैं बिल्कुल गरीब हूं, मैंने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। हाथ उठा के क्वेश्चन पूछो, जो भाषा में पूछ सकते पूछो। क्वेश्चन को समझने की जिम्मेदारी टीचर का है, तुम्हारा नहीं। It is the responsibility of the teacher to understand a question in whatever way you say. जो क्लास में हाथ उठाकर जो प्रश्न पूछते हैं, उनका जिंदगी का डर निकल जाता है। Because classroom is a laboratory of emotional development. क्लासरूम सिर्फ बीए पास होने के लिए नहीं है, एमए पास होने के लिए नहीं है। It college and the family are laboratories for human development. What you learn here, you get the fruits of it in life. So ask your question. क्या होता है पता है तभी? नाही असं आपण विचारायचं नाही, आपलं काय ते आपण हे सगळं विचारलं तर लोक काय म्हणणार, लोक हंसणार, लोग हंसेंगे यार। और शिक्षकों को क्या लगेगा, वो 3 बार सिखाए तब भी मेरे भेजे में नहीं घुस, उसको क्या लगे? देखो, जो हंसेंगे उनका आत्मविश्वास कम है, जो पूछेंगे वो जिंदगी में आगे जाएंगे। हाँ, टीचर प्यार से जवाब नहीं देगी। हाँ बेटा बताओ, टीचर भी अपनी माँ जैसी है ना। माँ कभी भी 24 घंटा प्यार करती है, बोलती है तू सुनता नहीं मेरा, तो ऐसा नहीं करता है, तू कुछ कोई काम करने तेरे बाप जैसा गया, ऐसे बोलते है माँ। वैसे टीचर है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, क्लिनिक, अस्पताल और सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? माँ है। टीचर माँ जैसी, माँ जैसी होती है। और टीचर कहेगी तुमको इतने बार समझा है तो भी तुम्हारे दिमाग में उतर, तुम्हारा ध्यान नहीं, यू डोंट पे अटेंशन इन द क्लास। स्टैंडर्ड सेंटेंस है, हजारों सालों से शिक्षक कहते हैं कि डोंट पे अटेंशन इन क्लास। अरे क्लास में अटेंशन पे करते तो थोड़ी ऐसा हमारे जैसे लोगों को काम मिलता। तुम अटेंशन नहीं पे करते, गड़बड़ होता है, फिर साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आते हैं और तब उनको कहना नहीं यार, थोड़ा हड्डी है ना मेरा भेजेगा, थोड़ा जाड़ा है यार, थोड़ा जाड़ा है, घुसने को टाइम लगता है, टीचर प्लीज बताओ ना। जैसे माँ को पटाते हो वैसे टीचर को पटाना, क्योंकि टीचर माँ जैसी होती है। सो यू ब्रेक योर एंजाइटी इन द क्लासरूम ऑफ योर लाइफ, यू ब्रेक योर सोशल एंजाइटी ऑफ लाइफ बाय आस्किंग क्वेश्चंस, बिकॉज पढ़ाई और पहलवानी की उम्र निकल गई तो भाई
बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे मेरे दोस्तों। मैं भी तुम्हारे जैसे छोटे से घर में रहा हूँ, छोटा सा वरांडा, जो 2x7 का वरांडा में चुपचाप बैठ के पढ़ता, क्योंकि मुझे उस समय पता चला था, कैसे वो ऊपर वाले का देन है कि उस समय पता चला था कि अपने पास पैसा नहीं है, अपन एक ही कर सकते, ज्ञान, नॉलेज। मैं एक ही कर सकता हूँ कि मैं मेरे जिंदगी में आगे आगे बढ़ने के लिए मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई ताकत नहीं है। और माँ कसम बोलता हूँ, घर में लोग आते थे तो मैं किसी को नहीं मिलता था, क्योंकि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोग आएंगे तो अपना क्या, अपने हुज फादर व्हाट गोज, अंग्रेजी हिंदी में अनुवाद मत करो इसको, क्योंकि मुझे सबको खुश कर, कशी आहे मावशी, काका तुम्ही कसे आहेत, हे करून माझं पुढचं काय होणार नाही हो, माझा अभ्यास चांगला झालं तर मी काय ना काय बनेन, आणि तुम लोग अब पढ़ाई अच्छे करोगे, अपने पैरों पे खड़े 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 रहोगे तो स्वयंवर का लाइन लगेगा। नहीं पढ़ोगे तो माँ कहेगी इसके साथ शादी कर, मेरा जैसी हालत हो तेरा होने दे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वक्त है जिंदगी बनाने का। हाँ, फिर भी अंदर से डर लगता है, तो एक डर का मैंने बोला, ask the question to a teacher. There is no shame in saying I don't know. People who say I don't know, they know more in the lives to come. ये ज्यादा सीखते हैं। मैं आज भी कहता हूँ, मैं बहुत हर एक लेक्चर में जब मैं आता हूँ वेबिनार में, मैं ध्यान से प्रिंसिपल की बातें सुनता हूँ, जिन्होंने जो कुछ कहा उनकी बातें सुनता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता हूँ मैं। तो दैट डर, अभी ऐसे करते करते तुम्हारी उम्र है ना, 10वीं के बाद जब यूनिफॉर्म चेंज होता है, स्कूल के यूनिफॉर्म से फटा हुआ जींस, पता नहीं तुम लोग फटे हुए जींस क्यों पहनते हो। मुझे ऐसा लगा जब ये फटे हुए जींस पहनते, मुझे लगा उनके पैसे का प्रॉब्लम। फिर पूछता हूँ, ये तुमको यू हैव एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम? ट्रेंड है, बोलते स्टाइल है। अरे यार, पूरे कपड़े पहनो यार, पूरे कपड़े पहनो। और ये उम्र में जीन्स पहन के हम इधर उधर देखते हैं, हाँ ही सो क्यूट, शी सो प्रिटी, उसकी आंखें कितनी अच्छी है, जरा कितना क्यूट है, कितना बिंदास है, कॉलेज में बिंदास, उसके कॉलेज में, आपके कॉलेज में तो नहीं, बहुत बिंदास है, वो ट्यूशन में आता है, बाप रे, मेरे बिल्डिंग के नीचे रहता है, मुझे अच्छा लगता है। वो प्यार क्या है जिससे पढ़ाई का त्याग करना पड़े, वो शादी क्या है जिससे तुम्हारा पूरी जिंदगी का त्याग करना पड़े। पर प्यार करो यार, मुझे कोई आफत नहीं है, पर प्यार पढ़ाई को प्रोत्साहन देती है तो प्यार करो, नाही तर प्यार करत सगळं विसरलं अभ्यास तर त्याचा काय उपयोग है। वो माँ की जिंदगी तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। माँ का सोच है मेरी बेटी कुछ न कुछ करे, मुझसे आगे बढ़े, मेरे तकलीफ न सहे और आगे जाए। और ऐसे समय पर अंदर से दुख होता है, आई लव यू। अरे काय का लव यार, लव करो मानता हूं, बट वो लव नहीं जिससे पढ़ाई का कंसंट्रेशन कम हो। और जब ऐसा होता है ना, आजकल प्रेशर बहुत है बच्चों का, पढ़ाई का नहीं, प्यार का। बॉयफ्रेंड नहीं है तो शर्म आती है, लाज वाटते, माझं कोणी बॉयफ्रेंडच नाही, माझं कोण, इतरांचं सगळ्यांचं आहे, ते सगळं मोबाईल मध्ये रात्रभर बसतात बोलता बोलता। अहो मेरी बेटियों, एक ध्यान में दो, ये 15 से 20 की उम्र में तुमने पढ़ाई का लफड़ा किया तो तुम्हारा ताकत चला गया। जो भी करना है, तुम्हारा पहला प्यार है तुम्हारा कैरियर और तुम्हारी पढ़ाई। दैट्स योर फर्स्ट लव, दैट्स योर फर्स्ट लव। और यदि ऐसे करते हुए भी, कि एक बार क्या है, कोरोना में बहुत लोगों को प्रपोज किया, क्योंकि बोर होते हैं ना, शाम को बोर होते, बोर्डम में बड़ा गंदा काम होता है, दारू पीना, चरस लेना, फालतू काम करना, गेम्स खेलना और प्रपोज करना। बैठे बैठे क्या करना, कुछ नहीं, प्रपोज करो। अरे यार, it's easy to get a girlfriend or a boyfriend, it's very easy, but it's very difficult to get a good friend. Invest in friendships. WhatsApp ग्रुप में 50 साल के बाद तुम्हारे दोस्त रहेंगे, वो मेरा जो ब्रेकअप हुआ वो चावा नहीं रहेगा, दोस्त रहेंगे। और दोस्त यानी क्या, अपने सर्कस में ट्रेपीज आर्टिस्ट जब रस्सी के ऊपर जब जाता है, नीचे जो नेट है ना, वो तुम्हारे दोस्त है, गिरते हैं तो आपको पकड़ेंगे, उठाएंगे।
फिर से हिम्मत देंगे, फिर से कहेंगे चलो जिंदगी में चलो। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू रियली इन्वेस्ट इन फ्रेंडशिप्स। आई एम नॉट अगेंस्ट लव, बट वो प्यार क्या है जिसे पढ़ाई का त्याग करना पड़ेगा। और ऐसे करते करते पढ़ाई, मैं तो जब था छोटा मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, बहुत हार्ड वर्किंग हूं, मेहनती हूं, बहुत मेहनती हूं। 1200 ग्राम का भेजा ऊपर वाले ने सबको दिया है, कोई जात पात का उसने कभी विभाजित नहीं की, कोई विभाजन नहीं किया उसने। सगळ्यांना 1200 ग्रॅमची बुद्धी दिली आहे ह्याच्यात। कसा आपण करतो उपयोग तो इंपॉर्टेंट है। एसएनडीटी में हो कि जय हिंद में हो, एसएनडीटी में हो या सिडनैम में हो, 1200 ग्राम का भेजा सबको दिया भगवान ने, यूज करना तुम्हारे हाथ में। और ये 15 से 20 साल का उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। गवाह मत, मानता हूं तकलीफ है, कोरोना आया है, पता है कोरोना आया है, पर कुछ भी होना, टीचर के साथ कांटेक्ट, सब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट, दोस्तों के साथ कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, और माँ बाप को मदद करना, ये तुम्हारा 4 सबसे बड़ा ड्यूटी है। आप कहेंगे काय का माँ बाप? कोविड में माँ बाप बड़े गुस्से करते हैं घर में, बहुत इरिटेबल है, बहुत इरिटेबल, ज्वालामुखी है घर। दीपा जी जोर से हंसते हैं क्योंकि उनके घर वाले भी उनको यही बताया, मैडम तुम सब बच्चों को सब संभालते हो, वहां राशन देते हो, हमारे घर में तुम They are standing here and saying yes. महाकाली हो, तुम हमारे घर में महाकाली हो, वहां सरस्वती हो, यहाँ महाकाली हो, ऐसे नहीं चलेगा। पर क्या करें, दीपा जी के जिम्मे भी बहुत काम है। घर इज द ओनली प्लेस वेयर शी कैन बी हरसेल्फ लाइक ऑल ऑफ अस। पर ये गुस्से के पीछे ना, जैसे हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट है और उनके मेरी जॉन ने कहा कि वो अमिताभ मेरा खास दोस्त है, ये इन लोगों को सबको पता है कि क्यों ऐसा होता है। बताता हूँ, ये कोरोना में फियरोडेमिक हुआ है, फियर प्लस एपिडेमिक इज फियरोडेमिक, और डर सब में है। 3 डर है भैया, मुझे इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा, मैं मर गया तो मेरे फैमिली को कौन संभालेंगे, ऐसे पिताजी सोचते हैं, माँ सोचते हैं, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। और तीसरा, आगे आमदनी कैसे आएगी, पैसे कैसे आएंगे, ये बहुत सारा डर है। मुझे इस कॉलेज का नहीं, और एक कॉलेज का 18 साल के बच्चे ने मुझे फोन किया, डॉक्टर साहब कुछ तो करो, मेरा घर ज्वालामुखी हुआ है। सब एक दूसरे को चावायला येतात, आमचं घर लहान आहे, 10x15 आहे, पण चावायला येतात ते अगोदर असं नव्हतं म्हणे। હવે બધાને બહુ ગુસ્સો આવે છે, જીભ બાબડી થઈ ગયા બધા। वो जीभ बाबड़ी नती थया, तुम एक काम करजो मोटा भाई, 18 साल के बच्चे मैंने बोला तुम्हें एक काम करा, तुम्हें सांगा आई बाबा माँ बाप मुझे तुम 3 दिन के बाद 15 मिनट के अपॉइंटमेंट दे दो। ये माँ बाप बड़े कतरा गए। माँ बाप को जब बच्चे कहते हैं कि 15 मिनट के अपॉइंटमेंट दे दो, उनको पता नहीं वो क्या बोलने वाला है। और माँ कहती है बॉयफ्रेंड है तो मुझे बता दे, मैं पापा को नहीं बताऊंगा। बस सभी बच्चों को कहता हूँ, ये माँ है ना, वो माँ और पापा एक ही यूनिट है, कितना भी उनका आपस में हो झगड़ा, पर तुम्हारे बारे में वो एक ही यूनिट है। तुम उसको सब बताओगे तो बस रात को पापा को जरूर बताते हो। तो ये मत समझो माँ कहते टेल मी आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। कोई फ्रेंड नहीं है बॉस, दैट इज अ सेपरेट यूनिट। तो पिताजी बोलेंगे जरा पूछना उसका दिमाग में क्या है, कोई आत्महत्या का तो विचार नहीं है। ऐसे वो बहुत कतराएंगे। 3 दिन तक टेंशन रहने दो और अपॉइंटमेंट के टाइम उनको पूछो। आपको बड़ा गुस्सा आता है, घर में सभी को गुस्सा आता है, पर आप में कोई डर है क्या? ये मुझे डॉक्टर हरीश शेट्टी ने कहा पूछने को, ऐसा बताओ हमारा नाम ले लो। तो सचमुच ऐसे जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा हाँ हमें बहुत डर लगता है, हमें कोरोना हुआ तो बेड मिलेगा क्या, नौकरी में 25% का कट हुआ है, आगे की चिंता। और ये सब चिंता बताएंगे ना, जितना चिंता बताएंगे उतना डर कम हो जाएगा, फिर से बंधन बन जाएगा फैमिली का, कुछ ना कुछ नया उपाय ढूंढने का हिम्मत मिले। देखो एक बात ध्यान रखना, भावनाएं जब हावी होते हैं ना, तब क्रिएटिव थॉट खत्म होता है, इनोवेशन खत्म होता है। काही सुचत नाही त्या काळी, समोर काळोखच दिसतो,
When we release our feelings, थोड़ा साफ करते हैं, थोड़ा क्लियर होता है, तो कुछ ना कुछ निकलता है, इनोवेशन आता है. A peaceful teacher innovates. A happy teacher innovates. A child who's sure about his future innovates. तो थोड़ा वो घर में वो शांति आ गई, तो माँ रोने लगी, इतना छोटी बात को तुम 3 दिन क्यों रुका है? हरीश शेट्टी ने कहा था, क्योंकि माहौल बनाना पड़ता है ना जिंदगी में, जैसे मैडम ने कहा माहौल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपके घर में यदि गुस्सा है, तो आप लोग माँ बाप के काउंसलर हो, ये मत कहो बार बार माँ बाप हमें समझते नहीं है, माँ बाप को बहुत तकलीफ है यार, अगला रोटी कहाँ से आएगा, अगली भाजी कभी से आएगी, 6 महीने के बाद ये भाजी और ये रोटी हमारे पास वो रहेगी क्या? हिम्मत देना अपना काम है बच्चों का. ऐसे रोल्स आर रिवर्स्ड आल्सो, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू गेट हिम्मत फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स. और जिसका कोई नहीं होता है उसका एस्ट्रोलॉजर नहीं, पत्रिका दाखवायला नका जाऊ, कुंडली दाखवायला नका जाऊ. तुमचं कॉलेजमध्ये अमिताभ आहे आणि इतर पण असणार लोक, शिक्षक पण आहेत, जो उघडपणे जाऊन फोन करायचा, अमिताभ जी मुझे तुमसे बात करना है. अमिताभ कहेंगे इस टाइम पे बात करो. Use your mental health professionals and your teachers. Teachers are frontline mental health professionals. और एक बात होती है, और एक बात आता है, नौकरी गई और पिताजी के घर जिंदगी जहन में बड़ा डर, बहु घबराहट. हाँ, हमारे कॉलेज हमको राशन देते पर कब तक देंगे, अपने को कुछ उपाय करना पड़ेगा. एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, हिंदुस्तान में जब पुरुषों का जाती है ना, जब नौकरी, कुछ लोग छुपाते हैं, बताते नहीं घर पे, कुछ लोग मुंह फुला के बैठते हैं, सामने वाले को पता चलना चाहिए कि मेरी नौकरी गई. ये हिंदुस्तानी जो पुरुष का बहुत बड़ा खासियत है. त्याला कळलं पाहिजे मला काय होतंय. और तीसरी बात, दे कम एंड इन्फॉर्म. हाँ, नौकरी गई है, अभी तेरा बक बक बिल्कुल नहीं चलेगा, तेरे बाइक तेरे स्कूटी में पेट्रोल के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, और तू रोज तेरा वो ये पिज्जा नहीं चलेगा, थोड़ा संभाल के रहो. अरे when you inform, you isolate everybody goes to other place and starts thinking. There's no bonding. बट याद रखना, नौकरी जाती है तो माँ बाप के जहन में डर, उदासीनता, गुस्सा, ये मेरी नौकरी क्यों गई, इतरों की क्यों नहीं गई. अरे तुम्हारी नौकरी इसके लिए तुम खराब नहीं हो, माहौल खराब है, परिस्थिति खराब है. वो बेचारे एसएमई वालों को उसका पैसा नहीं था, उसको कुछ लोगों को निकालना ही था. पर हम उनमें से नहीं हैं जो डर के भाग जाते हैं. और वो मन की धुआं जो है, ये धुआं कैसा क्लियर होगा? ध्यान रखना, पिताजी जब डाउन है, कंधे पर हाथ रखना. गुस्सा करें, कंधे पे हाथ किया, नया नया क्या शुरू किया, आज तक तूने मेरे कंधे पे हाथ नहीं, आज तक कैसे मैंने ऐसे वैसे जिंदगी जिया है. आज मेरे कॉलेज में डॉक्टर हरीश शेट्टी आए थे. हरीश बाबा बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कहा कि माँ बाप से स्नेह से बात करना, गुस्से से नहीं. और यदि उन्होंने कहा हाँ बेटी तू काही घाबरू नको, तू तुला जे काय तुझं भवितव्यासाठी जे काय करायचं मी करणार, पण माझी नौकरी गेली है. और जब आपके पिताजी दिल खोल के आपसे बात करते हो, 50% प्रॉब्लम सॉल्व, तो आप कहो उसको, अपन ऐसा करो, हम ऐसे करेंगे. खाना खाने के बाद सब मिलके आप ये बातें खुल के बांटो, कहो मत, बांटो. कहना और बांटने में फर्क है. कहने में हम फैक्ट्स कहते हैं, और जब बांटते हैं तो हम फीलिंग शेयर करते हैं. कितना फर्क है, छोटा सा फर्क है, पर उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है. कहना या बांटना. हाँ ठीक है. तो एक परिवार ने पिताजींच्या माझी नोकरी गेली, पण आपण घाबरायचं ना, आपण एकत्र होऊन काय ना काय करू. हे हा वाक्य चांगलं आहे, पण हा वाक्य तू काय घाबरू नको, मी आहे, तुझं भवितव्य माझ्या हातात आहे, काय चिंता कर, तुम्ही आपला अभ्यास करा. नाही, असं होत नाही हो, असं होत नाही, खोटं आहे, अगदी खोटं आहे. I don't want any अमिताभ बच्चन from a हिंदी मूवी जहां मैं खड़ा होता हूं वहां से लाइन शुरू होती है. ऐसा नहीं होता है यार. You are not an omnipotent, omnipresent, macho God, and don't try to be the pillar of the family all the time. If you are a pillar of the family all the time, your pillar will crack. There are many pillars in the family, and don't underestimate the ability to fight a crisis by other members.
हर एक आदमी घर का पिलर है। कभी कभी कुछ समय पर वो पिलर बनता है, कुछ समय पर तुम बनते हो। अलग अलग पिलर्स होते हैं। कुछ जो जो बेकार, योगेंद्र यादव बहुत 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 गुस्से वाला, बहुत अलग ही था वो ड्यूरिंग द पीस टाइम, बट इन द वॉर ही रोज टू द ओकेजन। Crisis brings the best of different people whom we have never estimated. तो मैंने कहा बांटो सबसे, तो उसने कहा मुझे बहुत लगता है डर, मुझे गुस्सा भी है, पर हम सब मिलके कुछ नहीं कर सके। एंड व्हेन ही शेयर्ड देयर वाज सपोर्ट, व्हेन यू इन्फॉर्म देयर इज आइसोलेशन। और जब हम 4 लोग, आपके ऑफिस में भी, आपके कॉलेज में भी, आपके क्लास में भी, जब इकट्ठा बैठ के कुछ विषय के बारे में सोचते हैं तो नया आइडियाज अपने आप आता है, क्योंकि भेजा दूसरे भेजे से बात करता रहता है अनकॉन्शियसली ऑल्सो। When brains are together, there is cosmic connection and creativity comes up automatically. तो बच्चों ने कहा हम कुछ न कुछ और करेंगे। माँ ने कहा मैं खाना बना के बेचूंगा। मेरे बिल्डिंग में कुछ लोग आके खाना बेचने लगे। 25 साल के बच्चे खाना बना के खाना बेचने लगे मेरे बिल्डिंग में। तो कुछ न कुछ नया नया आइडिया के लिए ब्रेन में स्पेस होना जरूरी है, और वो स्पेस क्रिएट करना अपने हाथ में। और जब मैं ऐसे कहता हूं, एक बार लोग मुझे पूछते हैं ये फियरोडेमिक को कैसे कम करना, हाउ शुड आई एक्चुअली गेट द फियर आउट ऑफ माय बॉडी, आउट ऑफ माय सिस्टम। मैं कहता हूं ध्यान रखो, बिग प्रॉब्लम्स हैव स्मॉल सॉल्यूशंस। रिमेंबर दिस। कोरोना के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। साइंटिस्ट ऑल्सो डू नॉट नो एवरीथिंग अबाउट द वायरस। वायरस इज टेकिंग डिफरेंट avatars and escaping the vaccine immunity also. We know very little why some people died and some people are alive. We know very little. We do not know the science behind it. Still, in spite of all the innovations, the battle between the man and the virus is on. और जब ये कहता हूं तब याद रखना, the most complex problems have simple solutions, very very simple. So one of the best ways, एक चांगला उपाय असा आहे की या भीतीतून दूर व्हायचं असेल तर लहान शुल्लक काम केलं पाहिजे घरी। शुल्लक काम म्हणजे सगळे मिळून थोडं काम केलं पाहिजे। थोडं अँकरची फोन करणं, कपडे सुकवणं, कपडे धुणं, सगळं मिळून केलं पाहिजे। आणि आपण जेव्हा लहान काम करतो तेव्हा आपण डिस्ट्रॅक्ट होऊन जातो। अँड पीपल से व्हाई शुड आई डिस्ट्रॅक्ट, इफ आई स्टॉप वर्किंग इट कम्स बॅक टू मी। नो, when you distract, you create a space in the mind for the mind to be creative, for the brain to become more creative. Number 2, remember, I've been always saying this 4 C's in the family. एक तर रुटीन करा क्रिएट। तुम्ही आम्ही काय फ्लॅट मध्ये राहतो का? आमचं घर लहान आहे, चाळीत आहे। अहो, रुटीन क्रिएट करणं म्हणजे डोंट गिव्ह द पॉवर ऑफ क्रिएटिंग अ रुटीन टू दैट ऑब्सेसिव, मेटिकुलस, वेरी वेरी ऑब्सेसिव पर्सन विल से 5 वाजता उठा, 5:15 वाजता स्तोत्र म्हणा, उसके बाद सभी मिलके व्यायाम करेंगे। ऐसे आदमी को तुम्हारा रूटीन मत दो। रूटीन का मतलब है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में पिताजी शायद थोड़ा व्यायाम घर के अंदर सुबह करेंगे, बच्चे थोड़ा शाम को करेंगे, पर सभी एडजस्ट हो जाएंगे, सम रूटीन। और याद रखना बच्चों तुम अपना खाना अपने रूम पे मत ले जाओ। अपना खाना अलग से बैठ के, टीवी हाथ में, मोबाइल लेके वो मत करो यार, साथ में खाना खाओ। और मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की पेरेंटिंग में माँ बाप के पास वीटो पावर है, अमेरिका नहीं है ये। कुछ माँ बाप को कहा आप डांट के कैसे भी करके बच्चों को खाना खाने बुलाओ साथ में, ये मेरा आदेश है। बांद्रा पूर्वचा आदेश आहे हा, लक्षात घ्या। आणि बांद्रा पूर्व मध्ये कोण राहतात तुम्हाला माहिती आहे ना? अहो, सांगण्याचा तात्पर्य ऐसा है, कहने का तात्पर्य यह है कि साथ में खाना खाओ। बच्चे कुछ दिन गुस्सा करेंगे, नहीं मैं फोर्सफुली खाना खाता, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। ओ बच्चे, धीरे धीरे जब साथ में खाना खाते हैं तो साथ में पलते हैं, साथ में फूलते हैं, साथ में एक दूसरे का साथ देकर हम समस्या से आगे निकल जा सकते हैं। कोरोना की माँ की अंग आएगा जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपन जिएंगे, और ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसे कहते कहते क्रिएट अ रूटीन, मैंने बोला जहां सब लोग एडजस्ट हो सकते हैं। ऐसा अब मेरा रूटीन इज योर रूटीन ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जिंदगी में रंग ले आओ, सबसे अच्छे कपड़े पहनो जिंदगी बीच में कभी।
एक महिला ने शादी का साड़ी पहन लिया, वो पति बड़ा चौंक गया, ये सब क्या है? बोले हमारे कॉलेज में हरी शेट्टी आए थे। कुछ नहीं करने, कलर पहनने से भी मूड अपने आप आ जाता है, रंग से मूड आ जाता है। अब झब्बा पैजामा पहन के बोर हो जाते हैं तुमको देख देख। एक दिन लाल शर्ट पहनो, कितना मजा आएगा। मेरी जॉन का पिंक लिपस्टिक से कितना अच्छी लगती है वो, देखो। कलर ऑल्सो कैन चेंज लाइफ, चेंज द मूड। और आप कहोगे देखो ऐसा क्यों, मेरे घर में एक कोरोना पॉजिटिव था, अब क्वारंटाइन से बाहर है, उसके सामने कलर पहनेगा तो उसको कैसा लगेगा? अरे यार, ये दिस योर हाउस इज नॉट द क्रीमेशन ग्राउंड, ये तुम्हारा क्रीमेशन ग्राउंड। नो गिल्ट, आया तो उसको भी पहनाओ यार, वो कुछ नहीं पहनती है तो कम से कम लाल दुपट्टा डाल दो। कभी कभी कुछ होता है, हम सिंपल लोग, हमसे क्या सादे लोग, हम और सादे 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 क्या है हो गया। दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट स्ट्रगल। उस समय हमने खादी पहना था, वो वक्त गया। डॉक्टर लोग को भी गंदी आदत थी, जब मैं नया नया एमबीबीएस में था बहुत साल पहले, तो हमारे डॉक्टर व्हाइट पहनते थे। मैंने बोला थोड़ा रंग पहनो यार, क्या का व्हाइट पहनते हो? किसने कहा कि हम लोग व्हाइट पहनना चाहिए? व्हाइट और ब्लैक पहनना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नहीं है, अभी कलर पिक्चर है ना। कलर ऑल्सो चेंजेस द मूड। नंबर 3, कॉन्वर्सेशन। अलिप्त राहू नका तुम्ही, एकलकोंड राहू नका, एकतर आम्ही सध्या आम्ही कोणाशी बोलत नाही, हम किसी से बात नहीं करते। बात करते तो हम लोग सिर्फ, और क्या होता है पता है, इन कोरोना when the fear is more, you become numb, and when you become numb, you might become apathetic. Nothing affects you. You build a shell around your brain, and and you build a shell around your brain because you want to protect yourself from bad news. And also, if somebody dies, you feel you will also die, so that you don't become sad, and you do not want to share your concern. Conversation with only people whom you love, whom you trust, your safe space. कहने का तात्पर्य ऐसे लोगों से मत बात करो, तुझे फोन आला तो मला पण भीती वाटते, तुला पण भीती होते, मला पण भीती, ऐसे लोगों के साथ बात नहीं कर। चलो माहिती है। और कोरोना न्यूज तो साले सब घरों में पता है। आज ऑक्सीजन ईस्ट से वेस्ट गया, आज इतना केस कम हो गया, आज इतना केस बढ़ गया। अरे यार, तुम्हारा काम नहीं है, वो सरकार का काम है। कितना केस बढ़ गया, कितना केस कम हो गया, ये बातचीत करना जरूरी नहीं है। ऐसे लोगों से बात करो। अब कल मेरा हिम्मत था, कल पर शाम को ना मुझे थोड़ा डर लगा। अच्छा, अरे मैं 4 दिन से मैं बिंदास हूं, पर आज सुबह थोड़ा विचार आया मेरे को, ऐसे लोगों से कॉन्वर्सेशन करते रहो। क्रिएट अ रूटीन, कलर कॉन्वर्सेशन। द लास्ट थिंग इज सेलिब्रेट। मोहन भाई पटेल को आज भी याद होगा कि कुछ साल पहले, 40 साल पहले, मोहन भाई चावल में नहीं मिलती थी, याद है? चावल का ब्लैक हो रहा था। बरोबर 40-50 साल के पहले, जब ये दीपा जी मुंडी हिलाती है, पर उसके बाल में वो गोदरेज लगता है, तो पता नहीं उम्र कितना है, पता नहीं चलता। चलो, बेटी है छोटी सी बेटी है। अरे हाँ, मोहन भाई पटेल को याद है कि 40 साल पहले बम्बई में चावल नहीं मिलती थी, ब्लैक होता था। गुजरात से कोलम आता था, कोलम। और तभी हम लोगों ने लैप्सी खाया, गेहूं के चावल, और कोई शर्म नहीं थी। याद रखना, मम्मी लोग हंसते खेलते हमको खिलाए। तो पॉइंट इज सेलिब्रेट व्हाट यू हैव। जे आपल्या ताटात जे येतो तेच देवाचा दान। आधी रोटी भी हंस के खाओ। And when you celebrate what you have, there is no lack of confidence. There is energy, there is courage, and there is joy. पर आजकल के माँ बाप, मी तुला काही देऊ शकत नाही, काय सांगायचं आता मैं क्या करूं बेटा, मैं तेरे को पिज्जा नहीं ला सकता, पगार कम है, ये है वो है। अरे यार, ऐसे बोल के जब दोगे तो अब बच्चों के अंदर जिंदगी भर का न्यूनगंड डाल रहे हो। आयुष्यभर त्याच्या मनात न्यूनगंड राहणार, त्याची हिम्मत कमी राहणार। राजेश चड्डा मुझे लगता है भाग गए। न्यूनगंड राहणार। सर, ऐसे आपको जरा नींद से जगा रहा। सेलिब्रेट वॉट एवर यू हैव। एक साल हमें हमारा सबसे टेस्टी डिश नहीं मिला पहले वहां पर, हमें ऐसा नहीं लगा कि वो I'm missing anything, because whatever you have is God's anna,
भगवान ही अन्नदाता है और जो है वही मेरा अन्न है। तो एज मोहन भाई सेड, माइंड को रेगुलेट करना, जो भी है, अपने घर में स्कूटी है तो भी मेरा इम्पाला है, घर में छोटा टेबल है तो यही मेरा ड्राइंग रूम है, अपना घर छोटा है, रिस्पेक्ट योर एनवायरनमेंट एंड यू फील योर माइंड इज पॉजिटिव। नहीं, मेरे घर में 165 लीटर्स का फ्रिज है, मेरी फ्रेंड के घर गया था, हम लोग सब लोग, उनका बड़ा फ्रिज है। अरे फ्रिज छोटा बड़ा आज नहीं तो कल चेंज होता जाएगा, बट मूड जो है ना उसको बनाना आपका काम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तुम लोग बच्चे लोगों को एक गंदी आदत है, खुल के बोलता हूं, आपको गुस्सा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मने शू फरक पड़े, मैं तो तिलगुळ गया आणि स्पष्ट बोला, बोलने वाले हैं हमने, तिलगुळ गया आणि गोड गोड बोला, सांगत सांगत आपण गोल गोल बोलायला सुरू केलंय, गोल गोल बोलायचं नाही, तिलगुळ गया आणि स्पष्ट बोला। और तुम लोगों की आदत है फोनवर पे बैठना, रात्रभर तुम्ही फोनवर बसतात होय, आणि सांगतो जो उंगलियों से खेलते हैं वो बुढ़ापे में लकड़ी लेके चलेंगे, जो हाथ पैर से खेलते हैं, दीपा जी ने अपने बच्चों को टपली मारा, जो हाथ पैर से खेलते हैं वो बुढ़ापे में चलते चलते जाएंगे, मोहन भाई जैसे एक्टिव रहेंगे। ये उंगलियों से खेलना बंद करो। कॉल ऑफ ड्यूटी, काय का कॉल ऑफ ड्यूटी, काउंटर स्ट्राइक, पबजी, गन से, अरे यार गन से खेलना है तो आर्मी ज्वाइन करो। If you want to play with guns, join the army. ये उंगलियों से खेलोगे ना तो हाथ पैर कमजोर हो जाएंगे, और बुढ़ापे में माँ कसम बोलता हूं, यदि तब तक आप जियोगे तो लकड़ी के सहारा चलोगे। स्टार्ट प्लेइंग विद योर हैंड्स एंड लेग्स। ये गर्ल्स, उतरो नीचे, राउंड मारो अपने मोहल्ले का या बिल्डिंग का, 15 मिनट भागो, या हिम्मत नहीं है, नहीं जाना है तो घर के अंदर 10 बाय 10 में भी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे 2000 फीट चलो। शरीर को आप हिलाओगे तो मन प्रफुल्लित होता है। ये उंगलियों से खेलना बंद करो। ये बुल्लू लाइट है ना, बुल्लू लाइट, उससे पीनियल ग्लैंड पर असर होता है, मेलाटोनिन का सिक्रेशन बंद होता है, और नींद, स्लीप अवेक साइकिल की वाट लगती है, और नींदवा की वाट लगती है। जो वो भोजपुर में बोलना है तो आपकी नींदवा जो है वो खराब होती है, आपके शरीर में बहुत पीड़ात होगा आपका। अरे यार, ब्लू लाइट से नींद उड़ जाएगी, और जो नींद से खिलवाड़ करेंगे उनके शरीर के सभी ऑर्गन स्ट्राइक में जाएंगे। 25 साल में पैनक्रियास बोलेगा मैं इंसुलिन नहीं देता, जा, शुगर बढ़ेगी। पेट कहेगा मैं भरपूर आपको एसिड दूंगा, एसिडिटी बढ़ेगी। लिवर कहेगा मैं साफ सफाई नहीं करूंगा पूरे शरीर का, फैटी लिवर हो जाएगा, शरीर टूटता जाएगा। और जो आज 60 साल की उम्र में जो होता है वो आपके जमाने में 30 साल की उम्र में होगा। My dear friends, you have to play with your hands and legs even now in corona, whether inside, सूर्य नमस्कार करो यार, दंड बैठक करो। सिर्फ सेक्सी शॉर्ट्स पहन के जिम में जाने की आवश्यकता नहीं है, और जिम खुला है तो भी मत जाओ, मैं बोलता मत जाओ। सभी टीचरों कहता हूं स्पॉट जॉगिंग करो। यदि हस्बैंड आके ऐसे करेगा तो मारो उसको पीछे, हिलाओ, हरीश 15 मिनट आधा घंटा अपने को एक्सरसाइज करना है। जो टीचर जो एक्सरसाइज करेंगे क्लास में हंसते हंसते लेक्चर देंगे, जलवा दिखाएंगे, हलवा खिलाएंगे, हवा तो कम से कम आएगा। तो डू नॉट प्ले विद योर ब्रेन, डू नॉट प्ले विद योर स्लीप। स्लीप डेप्रिवेशन इज वर्स देन इंसोम्निया। ये उम्र में आपको लगेगा कि आप 2 बजे सो जाएंगे और 8-10 को उठेंगे, नहीं चलेगा। जब चांद उतरती है तो जैन लोग चौयार करते हैं, साइंटिफिक है वो। और जो समय पे सोना, समय पे रहना, ये कूल बच्चों का ही निशान है, ये नर्डों का निशान नहीं है। हाँ, फ्रेंड से बातचीत करो, 11 बजे बात करो, कोई बात नहीं। और फोनवा के साथ जब सो जाओगे तो अपना पीनियल ग्लैंड और फोन आपस में बात करता रहता है, वो जितना दूर रहेगा उतनी नींद अच्छी आ जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ छोटी छोटी बात आपको सिर्फ बताता हूं। और यदि आपके घरों में किसी की मृत्यु हुई होगी, मेरे घर में भी हुई, 2 व्यक्तियों की हुई मेरे घर में। कल ही उनका 13वां था, और एक बार तो मैंने खुद अपने एक फैमिली मेंबर को अकेले जाके
क्रिमेटोरियम में अंतिम संस्कार किया अकेले जाके। हाँ, मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अचानक ही होता है और ये अपेक्षित मृत्यु नहीं है। तब बहुत डर लगता है, बहुत दुख होती है। यदि आपके घर में ऐसा हुआ होगा तो याद रखना रोना आवश्यक है। Crying is healthy. Family that cries together heals together. हाँ, मुझे कोई एक आदमी स्ट्रांग पिलर बनने की आवश्यकता नहीं है। पिता समझोगे मेरे बच्चे के ऊपर असर होगा, मैं नहीं रोऊंगा, गलत है, ये पिलर क्रैक हो जाएगा। जब पिता रोगे तो बच्चे को लगेगा ये नॉर्मल पिता है मेरे। बच्चों को नॉर्मल फादर चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। और कभी कभी बच्चे पिताजी को या माता जी को कंसोल कर सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं। और पिताजी कभी कभी, सो टर्न बाय टर्न यू हैव टू, एवरी पर्सन इज अ पिलर इन सम वेज, बाय द वे, एंड टर्न बाय टर्न यू कैन हील ईच अदर। जो बह गया वो आंसू है, जो रह गया वो जहर है। आंसू को रोकने का कोशिश मत करना, शरीर टूट जाएगा। और एक बात याद रखना, जब आपके आसपास के लोग बड़े विचलित होते हैं जब आप रोते हो तभी, पर इसका मतलब यही है कि इन्होंने जब उनको रोने का मौका था वो नहीं रोए, या उनके घरों में ऐसे माहौल थी कि रोना खराब है। एक महिला ने मुझे कहा, मेरे पति गुजर गए तो सब लोग बड़े अनकंफर्टेबल होते जब मैं रोता हूँ, और उन्होंने कहा मत रो, मेरी बेटी जो 3 साल की है वो मुझे बार बार देखती रहती है, और जब मैं थोड़ा रोता हूँ तो मुझे वो रोकती है। इसका मतलब क्या है, बच्चे भी वो इनकलकेट कर दिया, आत्मसात किया कि रोना खराब है, बिल्कुल गलत है। और रोते वक्त जो करते हैं ना, आई एम सॉरी, आई एम क्राइंग, काय को यार, हंसते हुए कभी कभी आपने किसी को कहा आई एम सॉरी, आई एम लाफिंग? भगवान क्या उल्लू है क्या? 2 बड़ी बाल्टी दिया है यहाँ। Weep in turns, console in turn, because each one in the house is a pillar by themselves. Don't underestimate the strength of your own pillar. You will break down much faster. My dear friends, कोरोना होने के बाद जो रिकवर हुए हैं उनको कभी कभी उदासीनता होती है, जलन होती है। जैसे कोई चैट बॉक्स में उन्होंने पूछा है हम क्या करें, और एक बार पूरी रात नींद नहीं आती है, और कुछ लोग ऐसा भी लगता है कोरोना से पहले हम अपना जीवन त्याग कर दो। ऐसे कुछ हुआ, नींद बिल्कुल नहीं आती हो, शरीर में बहुत जलन होता हो, या कभी कभी शरीर में बहुत तकलीफ और मन में उदासीनता हो, तो जिसका कोई नहीं होता है उसका साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट होता है। कुंडली पत्रिका जाऊन दाखवायचं नाही, और ये बड़ा कॉमन है। महाराष्ट्र में 1 लाख लोग गए, उसमें से कुछ लोगों को अपने संबंधियों को ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिला। क्या उनकी जिंदगी ठीक रहेगी? नहीं रहेगी, वो जिंदगी भर कोसते रहेंगे, गिल्ट आएगा, गुस्सा आएगा। उनको आज ही स्टेट गवर्नमेंट ने मानसिक स्वास्थ्य का इंटरवेंशन देना चाहिए। यदि आपके फैमिलीज में ऐसा कुछ, और एक बात, यदि आपको आपके फैमिली में किसी की मृत्यु हो गई और आपको लगता है कि ये आदमी घर से बाहर जाकर उसने वायरस लाया इसीलिए हुआ, और उस पर इतना गुस्सा कर, नहीं यार, नहीं, मृत्यु वायरस से हुआ है, व्यक्ति से नहीं। वायरस बड़ा कनिंग है, बड़ा बदमाश है, इट्स वेरी कनिंग, डोंट ब्लेम द पर्सन। आज मुझे एक फोन आया था, एक भाई अपने बहन को कोसता है, वो बहन बेचारी एक हॉस्पिटल में एडमिट है, 15 लीटर ऑक्सीजन में। वो भाई बोलता है तुम्हारे वजह से, तुम टीचर थी, तुम अपने स्कूल में गई थी मीटिंग के लिए, उसकी वजह से मेरे माँ बाप को हुआ, माँ बाप गुजर गए, मुझे तुमसे प्यार नहीं। माँ बाप गुजर गए वायरस के वजह से, तुम्हारी बहन के वजह से नहीं। बहन बाहर जाना था, उनको काम से गई वो। हम बाहर जाते रहते हैं, पहले भी वायरस से पहले ऐसे कोसना मत। और उसके मन में बहुत ज्यादा पछतावा और गिल्ट होगा जो कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा। और आपके मन में गुस्सा,
जिसके मन में गुस्सा है और जिसके मन में गिल्ट है, आपस में बैठ के बातें करो यार। दोनों ने माँ बाप को खोया है, एक ने नहीं। और हो सके तो यदि कम नहीं हुआ तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास बैठ के आप बातें करो, या कुछ नहीं हुआ तो तीर्थ यात्रा करो, माफी मांगो, भगवान से गुस्सा करो, कोई बात नहीं, भगवान सब सुनता है। और अपने जहन को शांत करो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आपके बच्चों के प्रति है और जो है फैमिली में उनके प्रति है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत पकाया ना मैंने, भरपूर पकाया। पर जाने से पहले मेरा पंचामृत आपको बता के जाता हूँ, याद करना। इट्स वेरी कूल टू डू योगा, इट्स वेरी वेरी कूल टू डू योगा। आई एम नॉट सेइंग इट, the Harvard University said that during the start of the first wave कि yoga is an antidote for COVID. The United States Navy is saying, has instructed all its sailors in their warships to do yoga. और अमेरिका ने कहा तो अमेरिका ने कहा ये पटलून पहनो, तुम लोग पहनते हो ना फटा हुआ जीन्स, गिरता हुआ जीन्स, एक जमाने में जीन्स था पीछे से साला पूरा को गिरता है, खींच के ऊपर करते हैं। अमेरिका ने कहा तो तुम करना पड़ेगा ना। बट युवा जो है ना, उनको लगता है ये योगा जो है ना रिटायर्ड लाइफ का वो एक्टिविटी। नहीं बाबा, खराब अवस्था हिंदुस्तान की कि सेक्युलर देश में योगा को लोगों ने अपोज किया। 3 साल की उम्र से योग करना चाहिए, आपके कॉलेजों में भी योग वॉलंटरी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बोलते योगों को क्यों कंपलसरी करना चाहिए? ज्योग्राफी हिस्ट्री को हमने किया क्या कंपलसरी? झट मार के आप सब सीखते हो ना। अरे जिंदगी बदलेगी यार। The greatest mental health professionals of the world were Patanjali and Gautam Buddha. Patanjali because he gave us yoga, and Gautam Buddha gave us mindfulness, vipassana। और आज विपाशना फ्री में देते हैं, पर माइंडफुलनेस को पैसा देना पड़ता है, पेटेंटेड है। जब पैसा देते हैं तो लगता है आपको साइंस है। And yoga and vipassana one of the greatest healing. So लोग कहते हैं, young people say आमी काम लगा योग वो करा था, हमें बोर हो तो। ओ गधेड़ो, जब श्वास लेते हैं ना धीरे से अंदर और धीरे से बाहर, तब क्या होता है पता है? क्रांति होती है मन और शरीर में। मन और शरीर आपस में अच्छी बातचीत करते हैं। माइंड एंड द बॉडी गेट्स अलाइन्ड टू ईच अदर एंड दैट गेट्स अलाइन्ड टू द यूनिवर्स। Philosophically but scientifically, the sympathetic and the parasympathetic nervous system get aligned. There is balance in the body, and your hippocampus improves, memory improves, amygdala calms down, anger goes down, prefrontal cortex also improves, which means the power to take the right decision in life improves. You will know how to choose your boyfriend or girlfriend. Yoga number 2, exercise. Exercise dissolves fear, tears, and anger. It again aligns the body and keeps you healthy. It improves memory. Very, very important. Number 3, Khurak. All the girls, please, my dear principal, see that their thyroid is normal. The hemoglobin is very low. Indian women, hemoglobin still very low. And see that the vitamins and the nutrients are normal. Vitamin D is less in all vegetarians and also others, because nutrition and mind has a very big correlation. यदि आपको 10 रुपया यदि आपको मिलता है पॉकेट मनी, 5 रुपया मिलता है पॉकेट मनी, तो उससे ले फे मत खाओ, चना सिंह खाओ। मोहन भाई जब छोटे थे तो 5 पैसे में एक चना सिंह की पूड़ी मिलती थी, याद छे मोटा भाई? अरे 2 आने में इडली की प्लेट खाते थे। हाँ, 2 आने में बिल्कुल। हाँ। तो चना सिंह खाओ, eat pulses if you get very little pocket money. खुराक इंपॉर्टेंट है, पानी पीना आवश्यकता है। गर्ल्स डोंट ड्रिंक वाटर बिकॉज बार बार उनको बाहर जाके पेशाब करना नहीं अच्छा लगता है, पर पानी पीना चाहिए क्योंकि पेशाब रोक के रखते हैं गर्ल्स एंड दे गेट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बॉयज तो कहीं भी पैंट उतार के साला पेशाब करते हैं। योगा, एक्सरसाइज, डाइट। 4th, स्लीप। 8 घंटा जो नींद है वहां शरीर रिपेयर होता है।
टॉक्सिन्स उठा के फेंक देते हैं और शरीर रिपेयर होने के बाद शरीर चुस्त होता है, याददाश्त बढ़ती है, हिम्मत बढ़ती है और आंखों में लाली और चेहरे में वो जान आती है। पैसा कितना भी हो, कुछ भी हो, जान आती है, जान आती है। फ्यूचर आगे बनता है, अच्छा होता है। माय डियर गर्ल्स, याद रखना, अपने को अपना भवितव्य घडवायचा है। जब तक पूरी पढ़ाई नहीं होती है तब तक शादी मत करना। जब तक जेब में पैसा नहीं आता अपनी जॉब का, अपनी नौकरी का, शादी मत करना। माँ बाप कहेंगे लग्न कर, चांगला मुलगा आहे, नंतर अभ्यास कर, एसएनईटीला नंतर जा। अहो असं काय होत नाही हो, असं काय होत नाही। और जब आप पैसा कमाओगे शादी के बाद अपना बैंक अकाउंट अलग से रखना, अपना पासवर्ड हस्बैंड को मत देना। अपने ससुर को अपना पैसा मैनेज करने के लिए मत देना। हजारों महिला मेरे पास आते हैं, 20 साल कमाई किया, मैंने अपना पूरा पैसा हस्बैंड को दिया, अभी वो कहता है घर से निकल जा, मेरे पास कुछ नहीं। पैसा ये ताकत है। हाँ, सिंपल लिविंग आई थिंक ठीक है, पैसा एक ताकत है, इट इज इंपॉर्टेंट, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, प्रोटेक्ट योर मनी। और माय डियर फ्रेंड्स, यू विल फील दैट आपका जो ड्रीम था वो शायद आगे निकल गया। नहीं यार, ड्रीम थोड़ा पोस्टपोन हो गया, आगे सपना देखना चाहिए। मैंने सपना देखा था, आप भी सपना देखो और सपनों को साकार करने का पूरा कोशिश करो। जो बहाने बनाएंगे, मेरा छोटा घर है, मेरे पास पैसा नहीं, देयर आर नो एक्सक्यूजेस इन लाइफ, आइदर यू आर अ ब्लूमर और अ ब्लेमर। पर ऐसे करते करते यदि मन उदास हुआ, पत्थर जैसा हुआ, बहुत जहन में तकलीफ है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, वर्ड्स बुक से ऊपर आते हैं फिर नीचे जाते हैं, अंदर नहीं जाते, बिकॉज पढ़ाई है ना, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है, अगेंस्ट ग्रेविटी। तब जिसका कोई नहीं होता है उसका अमिताभ बच्चन होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका टीचर होता है। टीचरों के पास बहुत सारा अनुभव है संभालने का। और ब्रेकअप हुआ तो मरने का कोशिश नहीं करने का भैया। वो ब्रेकअप इसीलिए होता है कि लव हैज बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तुम अच्छे नहीं हो ऐसा नहीं है, ब्रेकअप तो लाइफ का अनुभव है, होना चाहिए कभी कभी, कम से कम 23 साल के अंदर 3 होना चाहिए ब्रेकअप, माइंड का मसल मजबूत होता है। टीचरों को पूछो उनका कितना हुआ ब्रेकअप, वो बताएंगे आपको एक दिन। जोर से हंस रही है मेरी जान, बोलते 5 हुआ मेरा, ऐसे बोलती है, ऐसे मैंने, उसने उंगली बताया मुझे 5। My dear friends, there are many exams worth living for and no exams worth dying for. There are many boyfriends worth living for and no boyfriends worth dying for. And at the end, I would like to say, पढ़ाई और पहलवानी की उम्र होता है, गई तो गई। Strengthen your education, stand on your feet, और याद रखना अपनी जिंदगी की मोमबत्ती को दोनों बाजू से मत जलाना, सभी को काम पे लगाना। Don't be a martyr in life, be a manager. And see that whenever you are in big trouble, seek help, kill shame and seek help. With this, I stop my sharing. I thank Principal Deepa ji, my old friend, Amitabh, my mental health professional, my colleague and my dear friend for a very long time, more than 20 years now, Mohan Bhai Patel for his wisdom, Mary John for her kind words, and every faculty member who's here. याद करो, सोचो, सब टीचरा क्लास में जलवा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हलवा तो कम से कम खिलाना पड़ेगा, तो हवा तो आना पड़ेगा। And let the book dance in the class, let the pages dance on the book, and let the words dance on the page. I congratulate you for the experiment and hope. I would pray to God that this goes to thousands of students and this experiment is emulated by all colleges across the globe, across the universe. Thank you. Thank you, sir, for a very, very inspiring talk. We have heard you before. We have called you to the college. I think you have come to the college twice, thrice maybe. And I remember always the way you have been communicating. And it's amazing that you have
proficiency in all the 4 languages. You're speaking English, you're speaking Hindi, you're speaking Marathi, you're speaking Gujarati, and all the languages you're able to communicate. So you see how far-reaching your communication goes. And I really liked the way you told us teachers to change our style of teaching. That's something beautiful. And we would all want to be teachers like that, who would be able to communicate to our students in a way you are able to communicate. Of course, we can learn from you. Yeah. And Today I like we have 1,500 students, more than 1,500 students who are connected with us on That's YouTube very and good. here. And Very so good. Amitabh, you can take their questions. Some of them have written also, but some of them would be on the YouTube also. Yes, ma'am. We have collected the questions. We have the questions with us. So we invite questions now. And I would want to thank Dr. Shetty for his very, very communicative lecture. I think the way you told this, that big problem has small solutions, and you told how simplicity is so important. And your lecture, what you have done is the most important, most complex principle of psychology. You have communicated those principles in a such simple manner to everybody. So from all the students, from all the staff members, I would want to thank you. And I would want to ask Mary to take over for questions. Thank you, sir. Thank you, Amitabh. हमारा हिंदी जो है वो रंजना मिश्रा जी का हिंदी इतनी अच्छी नहीं होगी, नहीं? रंजना मिश्रा जी का तो हिंदी बड़ी ऊंची होगी. Thank you. Yes, Mary, go ahead. Yes, Doctor, I would like to take the first question from the 12th class student who has said, "Sir, we enjoyed your multiple messages, performance-packed session. We hope that you are our teacher." And her question is, we are 8 members in the family and all are busy with their online lectures from home and work from home. We have free time, but nobody speaks to each other. At the end of the day, everyone says that they are mentally fatigued. I feel a sense of loss of communication. So, sir, will taking an appointment really work? No, not at all. In fact, New York Times have used the word that we are languishing. A psychiatrist across the globe has said it is post-traumatic embitterment syndrome. We are bitter. Americans and the West have this beautiful way of articulating different things. देखो यार, मैंने अपना fatigue कैसे हटाया? मैं बताता हूँ आपको. And that may help you, that may not help you. One is that let light come inside your wound. They say if there's a wound, there's always light which is coming inside. And what is very important, my dear friend, is movement improves mood. Movement, even if you're in the house, movement improves mood. That's number one. Number two, we all have our mood lifters and mood shifters. I might have some. Yours could be different. Madam's could be different, and Professor John's could be different. So check what were your mood lifters in the past when there was trouble. जब बचपन से जो इवॉल्व हुआ मूड लिफ्टर्स क्या, मैं गाना गाता हूँ, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, and pick up that mood. For me, reading is a great mood lifter. लिखना मेरे लिए बड़ा trance activity है, trance, and even speaking is also a very great mood lifter. So pick up which is your mood lifter. It could be different for you. It may not be the same. Number 3. Talk to people who are able to connect, relate, and share joy. Or lastly, जब चानस मिलता है, तब बिना मतलब के, so laugh without reason, cry with reason. And I've said 3 things to all the employees who are online. Tickle your loved members in your family. If you have a spouse, tickle his belly. If you have a parent, father, mother, just tickle. Tickling each other also creates laughter. They will say, तू पागल हो गई क्या? मैं कहता हूँ, हाँ, थोड़ा पागल हुआ तो मन का स्वास्थ्य अच्छा रहता है. बहुत stoic रहे तो मन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है. Number 4, sometimes if you have water, have a shower bath.
It is Shirodhara in Ayurveda. And you may not put these girls, no, they will say shower bath, bal sab jayenge. Sabun mat dalo yaar. Number 6, म्यूजिका सुनो. अभी वो इकबाल का जो आपने आपने सुना है गाना, मेरा फेवरेट गाना है वो. And I see it with the video on. I mean, I have the song on my phone. I see it. So do little things to improve your mood. And if you really feel fatigued, check your diet. Check your hemoglobin. If you're adult, check your sugar and your hypertension. And if you're able to laugh without reason, off and on, remember your fatigue will go away. But at the same time, don't try to believe that you can be happy 24/7. Uppar utar chadav to hota rahega. Jaisa, so many things happen. But stay connected, stay smiling, cry. And one more thing, my dear friends, which I wanted to say is, if you hear any bad news and you feel sad, it is important to experience sadness, because empathy, sadness is the seed, empathy is the plant. Empathy would not come from anywhere. It comes from sadness. It comes from equanimity. And also remember, if you block your sadness, you will feel fatigue. And if you block your sadness also, you will not be able to love and experience joy, because sorrow and joy are two sides of the same coin. So do a lot of different small things and you'll find your fatigue is less. But if it still stays in spite of doing everything, go for a mental checkup. It could be subsyndromal depression. And Amitabh Bachchan ने कहा है 2 बूंद खुशी की, पोलियो. कभी कभी गोलियां खा के हम कहते हैं साइकियाट्रिस्ट, एक गोली खुशी की अच्छा होता है. So it could be different ways of handling things. So try everything and check whether it is just a normal fatigue, it's a stress, it's distress. Or for me, exercise breaks fatigue. By the way, when I walk approximately 5,000 feet inside the house, it breaks my fatigue. Laughing with my mother breaks my fatigue. माँ से मैं इतना मस्करी करता हूँ, वो बोलती है तुम साइकियाट्रिस्ट हो या पागल हो. मैंने बोला तुमने सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे. और बाद में कहती है, मैं जब वहाँ जब बिल्कुल नहीं होती, ये है ना, ये हरीश, ये मुझे हंसाता है और वो भी हंसता है, क्योंकि उसे फ्रेश रहना चाहिए और मुझे भी फ्रेश रखने का कोशिश करता है. So these things, small things are very important. Thank you for the question, dear. Yes, Mary. Thank you, sir. There is another question saying that my neighbor and friend has lost a family member. At my place, everything is fine. There is food on the table. Family members are well. But there is a sense of emptiness that I feel within. Is it because of the situation around us? Is it natural to feel this way? How does one control one's subconscious mind? And how long will it take for me to overcome this? I'm frozen, so I'll wait for a second till it opens. And yeah, I would say that I do not know much about the subconscious mind, but I know that if we are aware of our thoughts and feelings, we'll be able to anticipate what can happen. And there is an emptiness, and emptiness is there in so many families, and I see this all the time. So when I said create a routine, color, conversation is extremely important. And sometimes some families have reported that when they picked up the old pictures of their children having birthday parties, when they picked up the old pictures of the school life and seeing them in that uniform, it brings back good memories. Ultimately in life, there are billions of memories. If you can really get back some of those memories which are beautiful, that really breaks a lot of emptiness inside the house. And also I agree with you, my dear friend, that Corona has caused some amount of meaninglessness and an existential dilemma. क्यों जीना चाहिए? ऐसे ही सब लोग समझो मरते हैं, तो इसकी आवश्यकता क्या है? And the best way to break the existential sentence, the dilemma, is by being past positive and future positive. Past positive means looking back and finding what were the struggles you have encountered. How did you really cope with the struggles? And future positive is
trying to plan for the, अभी कोरोना हो जाएगा ना बंद, मैं अपनी PhD स्टार्ट करूंगी, कोरोना बंद हो जाएगा तो मैं MA पक्का करूंगी, और कोरोना हो जाएगा ना बंद, मैं वो एक मेरा बुक जो है मेरा, I had to read books I did not read, and I will do it. So past positive, future positive, and bringing back those beautiful memories of experience in life and living it as if it's happening now can break some amount of monotony, some amount of existential dilemma. But sometimes speaking to your priest also helps. Say if you have a family priest, or if you have a Jain Guru, or Mara Sahib, or anybody priest, sometimes that also helps you to break the monotony. Remember, priests are an integral part of our lives, and it is so important to also listen to them. Thank you, sir. There's another question. I think, Amitabh, this could be the last question. And Okay. then if the students, you take up the question, and then if the students want, we can forward the questions to it, right? Yes, ma'am. This is a question from a student in 3rd year studying psychology. She's asking, how should I let myself feel pain when I'm trying to cope up with loss? I'm an introvert, so how can I get support during such time, as it's not easy for me to open up? Yeah, very good. So remember, God is a champion of diversity, man is a champion of structure. So introvert guys are as important as extrovert guys, and the belief that extroverted guys share feelings is wrong. Introvert guys might be very comfortable to share feelings with a few people. That's something you need to acknowledge. You need to put your hand and say that, you know, God makes different types of people. Number one. And if you are in pain, do not accelerate to relieve your pain. It's a process. That's number one. Number two, speak to people who are very comfortable, with whom we are very comfortable to speak to, and you can share your pain. If you are not comfortable, there are many anonymous helplines which are available across the country. You can pick up the phone, because sometimes anonymity helps you to share the pain beautifully. And that, I think, is so important. And when you share the pain beautifully with people who are anonymous, that also can go. Sometimes you can write and share the pain. Sometimes people write and do a WhatsApp counseling process, which for them is much more comfortable than a live process. Sometimes some people speak to God, and like Amitabh Bachchan fought with God in the film Diwar. You can speak to God, and God might answer you inside your mind. Number 6 is, there is no need to resolve all the pain in life, and there's no need to dissolve all the pain by medicines. There is no complete closure to any separation, death or breakup. A little tinge of pain will always remain in life, and theek hai yaar. Theek hai. So as long as you're slowly moving ahead, it's much better. But if you feel locked in your mind, and you feel completely inundated, that you built a shell around your brain which is very strong, what is very important, that's the time you need to speak to a friend, to see to it that you see a professional, a psychologist or a psychiatrist, various techniques to help you to share and help you to. Congratulations for asking this question here. I really congratulate you for asking this question. This will help many in the audience to resolve. And remember, lastly, if you're an introvert and if you really feel that it's very tough to share, this is the time to start learning how to share. Sir, most of the questions that have come in the chat box, you have already answered all of them. However, one question is catching our attention, and we'll take this as the last question. How do we stop overthinking? How do we stop overthinking? Yes, sir. Overthinking. So overthinking is a standard term used by a lot of people to really describe many things. One is that I have a habit to ruminate. I tend to chew my thought again and again. And so sometimes you chew the thought again and again to find an answer to that thought. So that also creates a lot of problems. If you're a habit of ruminate, put down the thought, look at various options, which you say, for example,
I might not be able to get a job now after the corona, the pandemic. Okay, that's one option, one thought example. I'll put down the thought, stare at it, and find the optional thoughts for the same. It might be difficult for me to get a job in the coronavirus, but I know a few people whom I can send my resume. I can talk to my faculty to find out the ways of getting over the problem. I'm sure if I try hard, I'll get the job as soon as I can. If I don't get a job, I look for something which I can do on my own online, and I can earn my money, or I can do something else which could be different. I can also start continuing my education if my parents agree, and I'll be able to do something. I look at all the creative non-traditional activities which I can do to earn my job. So that's how you break that thought, which is ruminating. Number two is you get thoughts against your will, and you're inundated with thoughts, and there are a lot of negative thoughts, and it doesn't stop. The switch in your brain is not with you. At that point of time, observe the themes of the thoughts, and when you find that if the themes are particular, that you're very scared to die. So, for example, you're scared to die in the coronavirus is the theme, and you see your dead body, you see a lot of things. That time, khud ki boli, that is self-talk against samaj ki boli. Khud ki boli against samaj ki boli. Acknowledge the facts of the entire corona disaster. 97% of people have survived. 85% of those have recovered across quarantine. And if you have taken the vaccine, and if you have taken the second vaccine, the probability of you getting the virus is less, and the thoughts go down. But still the thoughts continuously inundate. It's good to talk to a doctor whom you respect and whom you trust and who's very close to you. And he or she would be able to really bring down anxiety. If you still feel very bad, it's good to talk to corona patients who have had corona and have survived. If it still remains very bad, a psychologist help you to differentiate the rational and the irrational thoughts and bring down the intensity. But sometimes, in spite of exercise, also can bring down these negative thoughts. Pranayam and breathing and relaxation therapy, or Shambhavi Mahamudra, or even Sudarshan Kriya can bring down the thoughts. If everything fails sometimes, and if the psychologist also feels that this could be a sign of early subsyndromal depression or depression, it's good to take some medicines and dissolve the thoughts. Thank you, sir. I want to extend vote of thanks to our esteemed guest. At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each of us has a cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. On behalf of Shri M.D. Shah Mahila College and Srimati T.S. Bafna Junior College, I would like to share immense gratitude to our speaker, Dr. Harish Shetty, for broadening our perspective and giving us the idea that if plan A doesn't work, the alphabet has 24 more letters. And if you are in Japan, 204 letters, more letters. Dr. Harish Shetty, your contribution to the society and to the ones needing emotional support during this very crucial time is commendable and is worth acknowledging. I would also like to thank our principal, Madam Dr. Deepa Sharma, and our management for their inspiration and constant support. I extend my thanks to the technical team and all those working behind the scene. Last but not the least, I would like to express my gratitude to one and all present during this program series, Mission Hope. Without your presence, this program would not have been possible. I request everybody to please stand for the national anthem. Before that, I would like to share my dear Joyce and Kimaya. We could not answer your questions. Maybe some other time, I would be able to answer your questions. Thank you. अभी सर शेयर ऑडियो
ना उसका बाहर का। कोई भैया भी करने लगे। प्रीति वॉइस नहीं आ रहा है। Bhavin sir is sharing. भाविन वॉइस नहीं आ रहा है। भाविन, if you can do once again. भारत माता की जय। जय। Very nice. So can we make it not live?